Hello, this is Dr. Vinod Kumar Berwa, Associate Professor of English from Government PG College, Bandigui. Today, I will discuss the famous poem O Great Poet written by Daya Pawar. Daya Pawar was a Marathi poet, novelist, and social activist. As a poet, he is known for his contribution in Dalit literature, which has been described the cruelties and sufferings, untouchabilities under the stigma of caste system in India. He was the writer of the film Dr. Bhimrao Ambedkar. He was awarded in 1990 by Padma Shri because of his contribution in Marathi literature. In Daya Pawar's works, there is the atrocities which were inflicted on Dalits downtrodden by the upper class people. दया पवार एक मराठी कवि उपन्यासकार और सक्रिय सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में थे। उनका मुख्य जो कंट्रीब्यूशन है वो दलित साहित्य की देन के रूप में वे जाने जाते हैं, जहाँ पर उन्होंने उनके दलितों के ऊपर अत्याचार, अछूतों के साथ भेदभाव, जाति प्रथा के अंदर जो किए गए दुर्व्यवहार है उसको बहुत अच्छी तरीके से डिपिक्ट किया है। वे बाबा साहब फिल्म के लेखक भी थे। मराठी साहित्य की देन के लिए उनको भारत सरकार के द्वारा 1990 में पद्मश्री सम्मान से नवाजा गया। इनकी कृतियों में अपर क्लास के द्वारा जो दलित और पद दलितों पर किए गए अत्याचार हैं उनका मेनली डिस्क्रिप्शन है। दया पवार, द कंप्लीट नेम ऑफ दया पवार इज दागुदू मारुति पवार. He was born on 15th September 1935 at Dattapur, Damangaon in Maharashtra. He died on 20th December 1996 at New Delhi. His major works are Balatu, Achut, Daya Pawar, or to call Dagudu Maruti Pawar, was an Indian Marathi language author and poet. Is known for his contribution to Dalit literature that dealt with the atrocities experienced by the Dalit or untouchables under the Hindu caste system. He was born in a Mahar Dalit family in Damangaon. He was Buddhist by religion. The present poem, O Great Poet, is, or to say, was written originally in Maratha, or to say Marathi language. Here, Daya Pawar comment on Valmiki ji, who is the first author, or to say the great author of the great epic Ramayana. Daya Pawar questions Valmiki's greatness as a poet because he ignored the people of his own class, caste, community. Valmiki himself belongs to Dalit family. He was born in dirty slum far away from the village. तो दया पवार वाल्मीकि जी जो कि रामायण के रचयिता थे, महाकाव्य रामायण के रचयिता थे, उनसे प्रश्न पूछते हैं कि ओ महान कवि, आपने अपने पीपल, अपनी कास्ट के लोगों को ही इग्नोर कर दिया, अपनी कम्युनिटी के लोगों को ही इग्नोर कर दिया। आपको ये नहीं पता है कि आप खुद उस जगह पे जन्मे हैं जहाँ जो कि डर्टी स्लम है और गांव से दूर है। वाल्मीकि didn't write even a single poem in protest against the cruelties suffered by the Dalits. Dalits were always considered as a low, inferior,
and they suffered and humiliated by the upper caste people. They were never treated as equal by the people of higher classes. Therefore, also says that Valmiki didn't write anything about the atrocities of the Dalit done to them by the upper class people. तो दया पवार जी का जो मेन यहाँ पर एक दिल में एक टीज है वो इस बात को लेकर के है कि आप जिस जाति से बिलोंग करते हैं उस जाति के बारे में एक शब्द भी, एक वर्ड भी आपने नहीं लिखा, जो कि वो लोग उस समय या दलित लोगों के ऊपर उस समय उच्च जाति के लोगों के द्वारा बहुत अपमान और उनका शोषण किया जाता था। उन्हें बराबर का नहीं समझा जाता था, समकक्ष नहीं समझा जाता था। और जो दलितों के ऊपर जितने भी अत्याचार हुए उसके ऊपर वाल्मीकि ने एक भी शब्द नहीं लिखा है। तो वाल्मीकि ने राम राज्य के बारे में बहुत लिखा, दैट्स गुड, बट उस दौरान जो अछूतों के साथ में जो व्यवहार किया जा रहा था और उनके जीवन में जो निराशा थी, चिंता से जो ग्रस्त थे, वो जो नीच काम करते थे, उनको लगातार जाति से बहिष्कृत समझा जाता था, उन पर अत्याचार किए जाते थे। उनके अत्याचारों को उदाहरण के तौर पर उन्होंने एक इंस्टेंस दिया है शंबुक जी की कहानी के बारे में कि किस तरीके से शंबुक का सिर राम के द्वारा काटा गया, और वो इसलिए काटा क्यों गया क्योंकि शंबुक जो थे उन्होंने एक कहा जाए कि अम, वेदों को या पवित्र वेदों को पढ़ने का दुस्साहस किया था। और इसी बात को, क्योंकि इसी बात को परिवाद को लेकर के, प्रतिवाद को लेकर के राम एंग्री हो गए और उन्होंने स्लेटर कर दिया शंबुक जी का। वाल्मीकि ने उस पक्ष के बारे में एक कविता भी नहीं लिखी। दया पवार बोलते हैं कि वाल्मीकि शंबुक के प्रति की, वाल्मीकि जी ने शंबुक के प्रति के किए गए अन्याय, विरोध और कहा जाए उनके खिलाफ जो उस तरीके का एक अत्याचार किया गया उसका वर्णन अगर इस रामायण में वो करते तो निश्चित रूप से दलितों के हृदय पर वो अंकित हो जाते। तो हम किस तरीके से आपको याद करें, अरे ओ महान व्यक्ति या अरे महान कवि, हम आपको किस बिहाफ पर कहें, यही प्रश्न है दया पवार का। सो ही सेज दैट, दया पवार सेज दैट कि वाल्मीकि डिडंट मेंशन even a single instance of the outcast or the depressed people, oppressed people. Here, the operation of is also available of the Sambuk Rishi in Ramayana. Sambuk's head was cut by Ram because he was a member of lower caste, or he belongs to a lower, or to say the Dalits, and the region, the Dalit poet, he says that he dared to read the sacred Vedas, but Valmiki didn't write even a, or to say in the defense of Sambukji, he didn't write even a single verse. Dayapower says ki why should we call you a great poet's poet? I think you have been, or to say you could have received a great respect from we people, and your name could have been inscribed on our heart if you write even a single instance about the poor sufferers. So come on to the text, dear students. I will read the text, then try to give the difficult meaning in the text along with the poem. So come on directly on the text. This is the poem, which is the anguish, or to say it is the some sort of pain of दया पवार्स हार्ट. He says that कि जो महान पोइट दलितों के यहाँ से भी हुए हैं उन्होंने भी दलितों के बारे में कुछ भी नहीं लिखा है, उनकी भी उपेक्षा हुई है। तो इस बात को लेकर के एक पीड़ा है यहाँ पर, एक तकलीफ है दया पवार की, जिसको कि उन्होंने यहाँ पर रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है। सो लुक एट, ओ वाल्मीकि, should you sing the praise of Ramrajya? Because you are the great poet's poet.
Here the poet Daya Pawar marks a question mark, or to say, he says, "Oh great poet Valmiki, oh Valmiki ji, should you sing द प्रेज ऑफ राम राज्य, क्या आपको राम राज्य की प्रशंसा करने की जरूरत थी? शुड यू सिंग द प्रेज ऑफ राम राज्य बिकॉज यू आर द ग्रेट पोइट्स। अरे आप तो महान कवियों के कवि रहे हैं, क्या आपको उस समय इस चीज़ की जरूरत महसूस हुई? ये प्रश्न करते हैं कि आपने क्यों गीत लिखा, वो गीत लिखने की क्या जरूरत पड़ गई थी? ही ऑल्सो गिव द इंस्टेंस और हेयर सीइंग द heron wounded wing, your compassionate heart broke out in lament. You were born outside the village, in a shunned neighborhood where misery itself was born. So he says that your, as you seen the heron wounded wing, जैसे ही तुमने एक घायल पक्षी डैना बगुला को देखा तो दयापूर्ण तरीके से तुम्हारा हृदय टूट पड़ा, यानी कि तुम घायल हो चुके, घायल हो गए पूरी तरीके से। हेरन वाउंड्स जो क्रोंच पक्षी है उसका पंख विंग एक घायल देखा आपने, एंड योर कंपनसेट हार्ट, और जो तुम्हारा जो दिल है वो करुणा से भर पड़ा, यानी कि आप दयापूर्ण हैं, बहुत ही तुझसे काइंड है, काइंड हार्टेड है, और तुम्हारा दिल जो है मतलब टूट पड़ा। और आपने क्या किया? लेमेंट, और आपके मुंह से एक दोहा निकल गया, एक सोरोफुल एक गीत निकल गया, एक एक उसके बारे में लाइन आपने लिख दी है। दया पावर वाल्मीकि जी से कहते हैं कि आप, डू यू नो दैट यू वर बोर्न आउटसाइड द विलेज, क्या आपको पता नहीं है कि आप बाहर पैदा हुए थे, गांव के बाहर, दलितों की बस्ती में। कहाँ? कहाँ पर? इन ए सन्ड नेबरहुड, सन्ड नेबरहुड घृणित, hated one, where misery itself was born, where there is all the way great sadness, जहाँ पर किसी तरीके का सुखमय वातावरण नहीं, ऑलवेज दुखमय वातावरण रहता है। और बोलते हैं कि तो यहाँ एक एक कंट्रास्ट है वाल्मीकि जी का कि आपने एक घायल क्रोंच पक्षी को देखा, आपने उसके बारे में एक दोहा, आपने एक टू से एक कहा जाए कि एक लाइन जो है आपने एक वो लिख दिया उसके ऊपर, एक वाउंडेड पक्षी के ऊपर तो आपने लिख दिया है। बट ऑन द अदर हैंड आपने जो ये कपलेट लिखा, हमें कोई आपत्ति नहीं है, आप काइंड थे, काइंड हार्टेड थे, अच्छी बात है। बट जो लोग आउटरेजेज हैं, आउटकास्ट हैं, घृणित हैं, शोषित हैं, तुम खुद दलित बस्ती में गांव के बाहर पैदा हुए, तो यहाँ एक कंट्रोवर्शियल है। पोइट दया जी बोलते हैं कि एक घायल क्रोंच पक्षी को देखा तो उसके बाद में आपने घृणा का अनुभव किया, करुणा का अनुभव किया आपके मन में, लेकिन आपकी स्वयं की जाति के बारे में एक शब्द भी नहीं निकला कि किस तरीके से उच्च जाति के लोग निम्न जाति के ऊपर, दलितों के ऊपर अत्याचार कर रहे थे। वे बहुत ही दुखपूर्ण और बिल्कुल उदासीन थे, हेटेड वन थे, मिजरीज वॉज बोर्न ओवर देयर, नेवर फेस्टून विद द फ्रूट्स एंड फ्लावर्स, द डिजेक्टेड फेसेस फ्यूरो विद केयर। हियर पोइट रेजेस सम शॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस, और वो बोलते हैं कि जो जो पुअर हैं, जो दलित हैं, जो लोअर कास्ट हैं, दे आर what they are, never festooned, they never decorated their houses, their to say उनकी जो कॉटेज हैं उनको उन्होंने कभी डेकोरेटेड नहीं किया with the bounty of fruits and flowers, because they had never seen some sort of happiness, उनकी लाइफ में तो हमेशा दुख और तकलीफें रही। द डिजेक्टेड फेसेस, द डिजेक्टेड फेसेस, द फेसेस विद फुल ऑफ सैडनेस, उनके दिलो दिमाग पर, उनके माथे पर चिंता की झुर्रियां हैं, वो उदास लोग हैं। दलित, उनका जो चेहरा है, उनका जो प्रतिबिंब है, वो कैसा नजर आता है? फ्यूरोड विद केयर, उनके जो फोरहेड है उस पर ऑल द वे देयर इज द रिंकल्स ऑफ टेंशन। इज इट ट्रू? यू नेवर हर्ड द लेमेंट एज दे क्राइड फॉर लिबरेशन? क्या ये दिस इज नॉट द फैक्ट? क्या आपको ये पता नहीं है कि आपको
या आपने कभी नहीं सुनी उनकी चित्कारें, उनके लेमेंट, उनके सैड सॉन्ग, उनकी पेनफुल वॉइसेस आपने कभी नहीं सुनी, जो कि वो आज़ादी के लिए चाहते थे। उन्होंने दया पवार बोलते हैं कि क्या आपको कभी उन व्यक्ति, उन लोगों की चित्कार सुनाई नहीं दी? सब वो एक इंस्टेंस और यहाँ पर याद दिलाते हैं, वन सम बुक ऑफ योर ओन ब्लड caught fire, rose in anger. Here, Daya Pawar reminds Valmiki to say that Shambuk was also from the lower caste. Do you know that? How Shambuk got his end? How Ram slaughtered his head? किस तरीके से राम ने उसका सिर को काट करके अलग कर दिया था. एंड हिज मिस्टेक वॉज ओनली दैट ही वॉज द ग्रेट सर्वर ऑफ गॉड, he was the worshipper of god, and he anyhow achieved or gained some sort of knowledge of vedas, and it was only his mistake or it was only his act that he dared to read the sacred vedas. और इसी बात को लेकर के एज ही reply Ram that yes, I have read the Vedas. और इतनी सी बात राम को चुप जाती है, राम ने उनका सिर धड़ से अलग कर देते हैं. सो दया पवार सेज और टू क्वेश्चन वाल्मीकि जी दैट कि आपको समझ में नहीं आया ये बात कि क्या आप एक शब्द उस इंस्टेंस के ऊपर लिखते, एक कविता उस इंस्टेंस के ऊपर लिखते, अगर आप एक उस इंस्टेंस के ऊपर कुछ लिखते हैं, क्योंकि कॉट फायर, क्योंकि आपके तो दिल में वो आग जली नहीं ना, आपके दिल में तो वो तकलीफ हुई नहीं. आपको रोज इन एंगर, आपको प्रोटेस्ट की जो भावना आनी चाहिए, एंगरली जो प्रोटेस्ट होना चाहिए, वो आपके दिल में, दिमाग में निकल करके ही नहीं आया, क्योंकि आप तो पूरी तरीके से राम राज्य में खोए हुए हैं. You are the great praiser of to say the great follower of Ram. Though you know that कि at that time the exploitations, the untouchability, the behavior जिसको कहा जाए कि इस समय का जो क्रुअल्टीज थी, जो एक एक कहा जाए कि उनके साथ में डिस्क्रिमिनेशन था, वाज ऑन टॉप एंड रामराज. द perfect example is of Sambukji. What was his fault? What was his mistake? The mistake of Sambukji was that he read the sacred Vedas, where it has written that कि एक man जो who belongs from a lower caste cannot read, cannot achieve the good knowledge. This is the stupid act done by Ram or here. This is the question asked by Daya Pawar to uh, Valmiki ji. He also says that, "Oh great poet, how should how I call you a great poet? Oh great poet." Ram, Daya Pawar again repeats, "Oh great poet." Valmiki ignored the Dalit completely and thus the lower the status of them. Valmiki sung the praise of Ramraj, जैसा I told you. Singing the praise of Ramraj, you always sing the praises of Ramraj. Even there, the icy cliff, even though this time there was the top of the heights of the cruelties, the heights of the indiscrimination was on top. At that time in the Ramraj, the Daya Pawar says that the indifferences, the cruelties, the exploitations, the to say discrimination with the Dalits were on the top. There was ill treatment on top. इनह्यूमनिटी टोवर्ड अप, इनह्यूमनिटी अमानवता तो इस समय मानो कि सिर चढ़ करके बोल रही थी, बहुत ऊंचाई पर थी. ओ ग्रेट पोइट, मेरे समझ में नहीं आता, हाउ शुड आई कॉल यू द ग्रेट पोइट? हाउ देन शुड यू कॉल द ग्रेट पोइट्स पोइट? मेरे समझ में नहीं आता, हाउ शुड वी कॉल यू द पोइट्स पोइट? यू आर नोन एज ग्रेट पोइट्स पोइट्स, यू आप कवियों कवि, महाकवियों कवि, कवि के रूप में आप जाने जाते हैं. बट हाउ शुड वी कॉल यू द ग्रेट पोइट? Had you written the just single verse? Did you ever think that कि मुझे एक शब्द, एक एक पोइम तो इन अपने दलित भाइयों के लिए लिखना चाहिए था, जो मेरी कास्ट कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, मेरे अपने क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, कि क्या तुम्हारे दिल में दलितों के
प्रति एक इतनी सी भावना नहीं निकले कि उनके ऊपर जो अत्याचार, शोषण एंड डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, उसके ऊपर आप एक कविता तो लिखते, एक्सपोजिंग दिस इनजस्टिस। अरे कुछ लिखते तो सही, इसको एक्सपोज तो करते, बताते तो सही, लोगों के सामने लाते तो सही। दिस आउटरीच, दिस वायलेंस, दिस जो एक तरीके का जो दुर्व्यवहार जो उनके साथ में किया जा रहा था, वो आपने उसके प्रति बिल्कुल पैसिवनेस दिखाया, आपने उन दुर्व्यवहार के ऊपर एक शब्द तक नहीं लिखा। देन वुड योर नेम हैव बीन कर्व्ड इन आवर हार्ट्स इफ यू राइट इवन अ सिंगल वर्स, और टू से टू एक्सपोज इनजस्टिस टुवर्ड्स द दलित्स। अगर आप उनके ऊपर एक थोड़ा भी कुछ एक्सपोज करते, लिखते उस समय राम राज्य में कि किस तरीके से दलितों के ऊपर अत्याचार हो रहे थे, उसके बारे में अगर थोड़ा भी लिखते, तो निश्चित रूप से आप हमारे दिलों पर राज्य करते और आपको हम बरसों बरसों तक याद करते, आपका जो नाम है हमारे दिलों के ऊपर, दलितों के हृदय के ऊपर अंकित हो जाता। वाल्मीकि इसी बात को लेकर के क्वेश्चन करते हैं कि आपको कैसे हम ग्रेट पोइट के रूप में कहें, क्योंकि आपने तो जो दलितों के प्रति अन्याय, दुर्व्यवहार, उसके प्रति आपने अपनी ओर से उदासीनता दिखाई है। सो इन नटसेल, अगर हम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो द पोइट दया पवार एड्रेसेस वाल्मीकि इन द पोइम ओ ग्रेट पोइट। द caste system is a stigma in Indian society which have been uh, depicted or described by Dayapawar in this poem. The poet Dayapawar raises a question in the poem, O great poet, about the caste inequality, ill treatment done by the upper class with the Dalits. He also says that during Ramraj, the people of Valmiki's community were treated as untouchable, or to say they were ill-treated, uh, towards to say the caste-wise they were behaving unequally. Poet Dayapawar also says that Sambuk, who was the Dalit and dared to read the sacred Vedas, so that the punishment was slaughtered, or to say chopped his head by Ram. He also object Valmiki's greatness, or to say as a great poet's poet, because he ignored the people of his own class, caste and community. Valmiki never wrote a single poem in the protest of the atrocities suffered by the Dalits or his own people. Dalits were never considered at par with, or to say they were never considered as equal to the upper class. Dalit denounce, or to say Daya Pawar denounced Valmiki because he remained altogether indifferences towards the injustice, ill treatment done with दलित्स बाय द अपर क्लास। जो दलित लोग हैं उनके ऊपर जो अत्याचार उच्च जाति के द्वारा किया गया है, इस बात को लेकर के वाल्मीकि की बहुत निंदा करते हैं, डिनाउंस करते हैं दया पवार। दया पवार ने एक कंट्रास्ट को यहाँ पर रिप्रेजेंट करने का कोशिश किया, जिसमें वाल्मीकि का हार्ट के दो पहलुओं को यहाँ पर ओवरवेल्म करने की कोशिश की है कि जो वाल्मीकि जी हैं उनका हार्ट जो है ओवरवेल्म हो गया विद द कंपैशन एट द पैथेटिक साइट ऑफ द वाउंडेड हेरोन। ऑन द अदर हैंड ही वॉज क्वाइट पैसिव, insensitive toward the oppression of the Dalits done by the higher class, the people of the upper class. Pawar also says that Valmiki had composed if ललित दया पवार जी बोलते हैं कि अगर उन्होंने, वाल्मीकि ने एक सिंगल पोइम भी इस अनजस्टिस और इल ट्रीटमेंट के बारे में जो कि दलितों के साथ में हो रहा है उसके ऊपर अगर एक इंस्टेंस भी वो लिखते, तो उनका नाम वुड हैव बीन इंस्क्राइब्ड ऑन द हार्ट्स ऑफ दलित फॉर ऑल टाइम to come, and they would have remembered him with love and respect. The poet Daya Pawar poses a very pertinent question to Valmiki. Oh, great poet, how should we call you a great poet? So, students, I have uh,
try my best to explain this poem. So, this is all about the beautiful poem, O Great Poet, written by Daya Pawar. With this note, I would like to conclude my topic, my poem, O Great Poet. Thank you very much. I think you have been clear with this concept. Have a nice day. Bye bye.